Hello and Assalamu alaikum. Today we will learn about plains and rivers. First of all, what is a plain? Plains are nearly level stretches of land lower than surrounding lands. It can be found on coast and inlands, and these plains are the fertile areas and the most populated area. And why they are most populated? Because the fertile soil and the area is plain, and building of roads and houses is very easy. That's why most people prefer to live in the plains. ओके प्लेन्स क्या है? लेवल स्ट्रेचेस ऑफ लैंड है जो कि कहीं भी हो सकते हैं, कोस्टल एरियाज में और इनलैंड पे। इसके बाद प्लेन्स मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड हैं। और क्यों पॉपुलेटेड हैं? क्योंकि उनकी फर्टिलिटी की वजह से और टेरियन फ्लैट होने की वजह से वहाँ बिल्डिंग्स ऑफ हाउसेस, रोड्स, रेलवे बहुत इजी है। दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल प्रेफर टू लिव इन प्लेन। Now, Indo-Gangetic plains are most populated regions of the world. अब इसमें इंडस, गंगाज, ब्रह्मपुत्रा इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं, और इसमें पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश आर द एरियाज which are found in Indo-Gangetic plains. And 1/7 of the world population used to live in Indo-Gangetic plains. And Indo-Gangetic plains are famous for fertile soil named as alluvial soil. अलूवियल सॉइल वो सॉइल होती है जो रिवर अपने साथ लाता है, और कलर में ये थोड़ी ब्लैकिश होती है और बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, फाइन पार्टिकल्स से बनी होती है। Our second topic of this chapter is a river. First of all, you must know about the definition of a river. A river is the fresh flowing water body that flow downhill because of the force of gravity. A river can be wide, deep, shallow, but it flows from a highland and moves toward the lowland like plains. River fresh water body होता है जो कि मूव करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये मोस्टली स्टार्ट कहाँ से होता है? फ्रॉम अ माउंटेन, और मूव कहाँ की तरफ करता है? टूवर्ड्स द प्लेन्स। देन रिवर सिस्टम। नाउ the whole river did not flow separately. It has different parts which makes up the river system, and it start from the starting point to the end of the river. From start to the end of the river, all the parts of the river make up a system called the river system. From source to the sea or ocean, whole area covered by river form a river system, are also called drainage basin. A river system is made up of these components: source, stream, tributaries, mouth, and distributaries. Then you can see the diagram. Source on mountain, then the flow of the river is called stream, then meanders. The curves made by the river during the flow are called meanders. Then delta. Delta, a triangular shape formed before the mouth, is called a delta. And mouth, the place from where the river enters into sea or ocean, is called the mouth. Then explanation of these components of river. Source, a place from where the river starts, is called a source. This is also called headwater. अच्छा, अब ये जो सोर्स होता है ये कुछ भी हो सकता है, लाइक समटाइम अ लेक, समटाइम द फ्लो फ्रॉम a spring, or sometimes the melting of glacier will be a caused or will be a source of the river. Then the stream, flowing body of water that is smaller than the river, is called a stream. जो flowing होती है water की उसको stream कहा जाता है. Then tributaries, there are some small streams that join the large streams. These are called tributaries. Then mouth, the place from where the river enters into a sea or ocean, is called the mouth. Then distributaries, at the last stage the river divides or split into small channels or make the small branches or small streams before entering the sea or ocean.
These streams are called distributaries. Then drainage basin. The river starts from a source and then it enters into a sea or ocean near the mouth of the river. From the source to the mouth, the whole area drained by a river is called drainage basin. And watershed, the boundary of the drainage basin is called watershed. Then river course. The path or the way taken by a river from the source to the mouth is known as a river course. And there are three types of course: the upper course, the middle course, and the lower course. Here you can see in the diagram that in the upper course, the river valley is narrow, amount of water is less, speed is quick, it flows very quickly, and river bed is rough. In the middle course, the river is wider, more water is here, and it doesn't flow as quickly as in the upper course. Then the lower course. Now the rivers reach in the lower course, you can see that it's a plain stage of the river. यहाँ आके plain stage होने की वजह से river की speed बहुत ही slow हो जाती है, amount of water ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, river wider हो जाता है यहाँ आके, लेकिन इसकी speed slow हो जाती है और river bed क्या है, smooth हो जाता है. तो थ्री कोर्सेज में अपर कोर्स में रिवर वैली नैरो हो जाती है, मिडल में वैली वाइड हो जाती है और लोअर कोर्स में वाइडर. अमाउंट ऑफ वाटर अपर में लेस है, मोर हो गया है मिडल में और मोस्ट है लोअर में. स्पीड वेरी क्विक है अपर में और उसके बाद स्लो हो गई है मिडल में बट स्लोअर इन लोअर कोर्स. एंड रिवर बेड अपर में रफ है, मिडल में रफ प्लस स्मूथ है और लोअर में बहुत ही स्मूथ हो गया. Then main courses of the river: upper course, middle course, and lower course. With the help of this diagram, you can learn how to label the diagram. You can see first stage पे source है, then mountainous stage जो है वो upper course है, then जो सेमी माउंटेनियस स्टेज है वो मिडिल कोर्स है और लोअर कोर्स जो है वो प्लेन स्टेज है जो माउथ से थोड़ा पहले होता है. Then you can see upper course, middle course and lower course. River features, यहाँ V shaped valley होती है, interlocking spurs होते हैं, rapid waterfall यहाँ पे बनती हैं. मिडिल कोर्स में meanders and oxbow lakes बनती हैं और लोअर कोर्स में levees, breeds and deltas बनते हैं. Now the floodplains. A floodplain is generally flat area of land next to a river or stream. रिवर और स्ट्रीम के साइड्स पे जो फ्लैट एरियाज बनते हैं उनको फ्लड प्लेन्स कहा जाता है और ये रिवर बैंक से स्टार्ट होके बहुत दूर वैली तक भी जाते हैं. फ्लड प्लेन्स दो पार्ट्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. अच्छा, अब ये दो तरीके से बन सकता है. जब इरोजन होती है, ठीक है, इरोजन फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे जब होती है तो रिवर जब अपने साथ सेडिमेंट्स को लेके आता है, उन सेडिमेंट्स को ये अपनी सराउंडिंग पे जब डिपॉजिट करता है तो उससे फ्लड प्लेन्स बनते हैं. अब आप डिटेल से देखेंगे फ्लड कैसे बनते हैं. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बिफोर फ्लड आप वाटर की पोजीशन देख सकते हैं. अब फ्लड स्टेज में आप देखें वाटर की पोजीशन चेंज हो गई है, ये ओवरफ्लो हो गया फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द रिवर. और थर्ड स्टेज में सेडिमेंट्स वहीं डिपॉजिट हो गए, वाटर रिट्रीट बैक कर गया. अब जब रिपीटेडली ये प्रोसेस होता है तो उससे सेडिमेंट्स की लेयर्स बनती जाती हैं और विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं और ये बहुत फर्टाइल होते हैं और इसमें जितनी भी लेयर्स होती हैं सॉइल की वो फाइन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं. Then deltas. Delta is a landform shaped like a triangle created by the deposition of sediment that is carried by a river and enters slower moving or stagnant water. अब आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ट्रायंगुलर शेप ऐसे लैंडफॉर्म जो कि रिवर के लास्ट स्टेज पे जाके बनते हैं उनको डेल्टा कहा जाता है. और डेल्टा क्यों कहा जाता है? ये शेप डेल्टा जैसे होते हैं. अच्छा, अब ये बनते कैसे हैं? बनते ये उन सेडिमेंट से हैं जो रिवर अपने साथ लेके आता है और ये अपर कोर्स से लेके लोअर कोर्स तक हर जगह से लेके आया होता है. और ये किस जगह पे बनते हैं? बिफोर द माउथ ऑफ द रिवर. अब कैसे बनते हैं इसको डिटेल से
देखते हैं। डेल्टाज आर फॉर्म बिफोर द माउथ ऑफ द रिवर, ये वो जगह है जहाँ बनते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, शेप इनकी क्या है, ट्रायंगुलर शेप है। बनते किस चीज से हैं, द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर। अब क्या कंडीशंस हैं डेल्टा की फॉर्मेशन के लिए, क्या चीजें होना जरूरी हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉट ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय रिवर। रिवर अपने साथ इतना सेटलमेंट्स लेके आए कि डेल्टा की फॉर्मेशन हो सके। नंबर टू, ऐसा ना हो कि सेडिमेंट मिडल कोर्स में डिपॉजिट हो जाए। ऐसा कब होता है, जब डैम्स बना लिए जाते हैं, रिवर की स्पीड स्लो हो जाती है, तो उससे लोअर कोर्स में से पहुंचने से पहले पहले सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्लो स्पीड ऑफ रिवर, इसके लिए ये मस्ट है कि लास्ट स्टेज पे आके रिवर की स्पीड जो है वो स्लो हो। अदरवाइज अगर उसकी स्पीड तेज होगी तो वो वहां से भी सेडिमेंट्स को अपने साथ लेके सी में शामिल हो जाएगा। और प्लेस फॉर डिपॉजिटिंग मटेरियल बिफोर माउथ, रिवर के जो माउथ है उससे पहले एक ऐसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ या ऐसा प्लेन एरिया होना चाहिए जहां मटेरियल को डिपॉजिट किया जा सके। अदरवाइज अगर थोड़ी सी भी स्लोप होगी तो वो मटेरियल जो है वो रिवर वाटर के साथ ही सी में शामिल हो जाएगा। और करंट्स एंड वेव्स मस्ट नॉट वॉश द सेडिमेंट्स, करंट्स और वेव्स को वहां नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो वॉश कर लेंगे सेडिमेंट्स को और ओशन या सी में ले जाएंगे। देन द बेनिफिट्स ऑफ रिवर, तो रिवर पास्ट टाइम से हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। जैसे आपने 6th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा, इजिप्ट ने फ्लोरिश किया था बिकॉज ऑफ रिवर नाइल, because they were expert in boat making or they have the river Nile, that's why they succeeded or they flourish। तब आज भी रिवर उतने ही इम्पोर्टेंट हैं एज अ सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में ये मटेरियल और लोगों दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रैवलिंग के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, एज अ फन भी बोटिंग की जाती है, लेकिन कुछ जगहों पे मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फार्मिंग में रिवर दो तरह से हेल्प करते हैं। नंबर 1, रिवर प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल फॉर कल्टीवेशन एंड नंबर 2, रिवर प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ रिवर। फूड सप्लाई, डिफरेंट टाइप ऑफ फिश एज अ फूड हमें प्रोवाइड करता है। एंड डोमेस्टिक यूज, डेली यूज जो हमारे हैं उसके लिए रिवर यूज किया जाता है। सो दीज आर द बेनिफिट और यूजेस ऑफ द रिवर। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। अल्लाह हाफिज।